हम लोग किस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं. So the whole thing is basically depend upon these things. So as I just covered related to the term competition, whenever we talking about the term competition, we are not just think about just two teams is participating. Lot of other things is going on. The aspect I just only told you, like cultural aspect, economical aspect. These are some wonderful things that change the whole scenario. And then afterwards, we also add this thing, the sociological aspect. And then afterwards, the players just want to know his or her performance also, how he or she is performing. So competition giving the exact platform to our players, isn't it? And then the player is going to participate in which competition. So we are just discussing like which type of competition, like major competition, main competition, build-up competition. So which type of competition he or she is going to participate? So major competition, I am just touching the little points regarding these types. So major competition is the most important competition of the player. Like if player want to participate in the Olympics or World Championship, then that competition become a major competition. And when the same player is going to participate in the national level, then that competition become a main competition, less important than the major competition, is called basically a main competition. And when the same player is going to participate in club level, district level tournaments, then the same competition become a build-up competition. That competition basically gives the practice to the player so that he or she can participate in the main competition and in the major competition. So I just want to touch the what is competition, different types of competition, their aspect, why they are very much important. So after knowing all these things, we just able to organize the event. So whenever we organize the event for basically a handball competition, so we are just looking a few things. So these are the things that we have to consider. So first of all, we must consider the place, date, duration of the tournament. So well in advance, we have to just focus on these aspects. Then we are just a team of organization and staff, very important. Organization staff, that is we call different. Now we are thinking about and making a organizing committee so that our tournament runs successful in successful manner and smoothly. For conducting a tournament or the event, sports event, we require a good team for smooth conduct of the tournament or the competition. तो वी मस्ट आइडेंटिफाई द पीपल. आपको वो पीपल पहले से आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो आपकी कमेटी डिजाइन करेंगे. उसमें हर कमेटी अलग अलग होगी. टेक्निकल कमेटी आ जाती है, फिर हमारी उसमें पब्लिसिटी कमेटी रहती है, फिर हमारे उसमें ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है. तो ये डिफरेंट जो जितनी भी कमेटीज आएंगी उसके बारे में वी हैव टू फोकस. देन नंबर ऑफ हैंडबॉल फील्ड इज रिक्वायर्ड. हाउ मेनी फील्ड्स वी हैव नीडेड फॉर कंडक्टिंग द पर्टिकुलर टूर्नामेंट. ये हमें पहले से रेडी होना चाहिए. वेदर वी रिक्वायर टू हैंडबॉल कोर्ट और 1 or maybe 3 or 4 level of the tournament, whether it is for mini handball or like for children, for district level, for state level or national level. So according to that we have to decide, and then afterwards well in advance we just distribute the registration form. That is most important thing.
अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगेट टू डिस्ट्रीब्यूट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये वेल इन एडवांस हो जाना चाहिए, सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास पहले से कलेक्ट होने चाहिए, कौन से बच्चे आ रहे हैं, उसमें कौन से बच्चे जो आके पार्टिसिपेट करेंगे, उनका फोटोज, ये सारा चीज वेल इन एडवांस आपके पास एक फुल रिकॉर्ड होना चाहिए। उनका इवन हेल्थ स्टेटस भी आपको पता होना चाहिए, ये भी उसमें कवर किया जाता है। एंड देन आफ्टरवर्ड यू जस्ट ऑल्सो फोकस ऑन द बेसिक रूल ऑफ गेम। अब क्या होता है, इफ वी ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट फॉर like for children up to 10 to 12, अगर हम 10 to 12 के लिए टूर्नामेंट कर रहे हैं तो हमारा वो अलग हो जाएगा। इफ यू जस्ट ऑर्गेनाइजिंग द टूर्नामेंट फॉर 16 और 17 ईयर्स प्लेयर, तो हमारा यहाँ पर रूल्स चेंज हो जाएंगे। तो अब इसमें क्या होता है, इट डिपेंड्स कि आपका जो रूल है वो क्या है, यानी आप अपने खुद के रूल्स भी यू कैन मेक अलॉन्ग विद अपने IHF रूल बुक जो फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप अपने रूल्स को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है, ऐसा बाउंडेशन नहीं होता कि आपको ये सारी चीजें ही उसमें करनी है। फिर क्या होता है, सबसे जो अनटच्ड पार्ट रह जाता है, कहीं कहीं जगह आपने देखा होगा कंपटीशन में, वो जो बेसिकली रिफ्रेशमेंट और जो प्राइजेस को लेके होता है, वो बड़ा वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो उसमें जो आपकी जो एंट्री फीस है या जो भी चीज है, वो सब पहले से क्लियरिटी के साथ आना चाहिए। फिर नंबर ऑफ टीम, कितनी टीम वहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो आपको पहले से क्लियर होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए। देन रेफरीज एंड डेलीगेट, तो आप उसमें किनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ सिंपल इवेंट इन योर स्कूल और इन द कॉलेज, यू कैन इन्वॉल्व PE टीचर्स, कोचेस, किड्स, इवन किड्स कैन ऑल्सो बिकम रेफरी एंड डेलीगेट, उनको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ ग्रुप, देन वी आर फोकसिंग ऑन द नंबर ऑफ ग्रुप, हम उसमें कितने ग्रुप बनाएंगे, 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, 3 4 ग्रुप, तो ये भी हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द टीम, ग्रुप बेसिकली डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टीम। एंड देन वी आर फोकसिंग ऑन द रूल्स, ड्यूरेशन ऑफ गेम, टूर्नामेंट स्टार्ट। So like according to IHF rule book, if we just want to follow the whole time 30 10 30, or whether we want to change the duration of time, now again it depends upon the level of the player, उनका एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, उनका परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर क्या है, किस एज के हैं सबसे बड़ा बात। फिर आपका मतलब इसमें बेसिकली एजेंडा क्या है, आप इंजॉयमेंट कराना चाहते हैं, फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लीग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें इसमें डिटरमाइन करेंगी। फिर आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है टूर्नामेंट चार्ट, ये पहले से रेडी होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है, टीम पहुंच जाती है, ये बाद में मिलता है, तो ये वेल इन एडवांस आपका रेडी होने चाहिए। रूल, ड्यूरेशन एंड टूर्नामेंट चार्ट, ये पहले से क्लियर होना चाहिए टू ईच एंड एवरी टीम। जब वहां पर वो आ रही है तो उनको सब कुछ पहले से ये होना चाहिए। ये नहीं है कि ऑन द स्पॉट, मैक्सिमम क्या होता है ऑन द स्पॉट ये ज्यादातर चीजें हो रही होती है कि नहीं होती है। अब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट चालू होने, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पास क्या फैसिलिटीज हैं, आपके पास क्या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये कौन, ये आपको पता है एज ए ऑर्गेनाइजर, यू नो वेल। So according to that, well in advance, you just distribute all these things, rules of the competition, what is the exact duration of the game, and after all, also just send the tournament chart. So, and then afterwards, the most important thing, how you organize the opening and closing ceremonies. What is the structure of opening? What is the structure of the closing? That also basically डिसाइडेड वेल इन एडवांस, पहले से हो जाना चाहिए। तब ये हमारा क्या होता है कि उसका सक्सेस रेशियो हाई हो जाता है। तो ये सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं बिफोर वी जस्ट, अगर हम फोकस कर रहे हैं, दीज आर द मेजर पॉइंट्स, और इनके सब पॉइंट्स भी हैं जो मैंने अभी इसमें कवर नहीं कर रहा है। तो ये सारे जो मेजर पॉइंट्स हैं दैट वी मस्ट फोकस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्पिटिशन इवेंट। एंड देन आफ्टरवर्ड एक और प्रॉब्लम आती है सेंडिंग ऑफ द इनविटेशन। जो इनविटेशन होते हैं
वो भी नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी टीम्स को आपने देखा होगा कि इनविटेशन टाइम से नहीं मिल रहा है, लास्ट मोमेंट पर इनविटेशन मिल रहा है। तो वो ये नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका जो इनविटेशन है वो भी पहले से डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। और अगर बेटर है इफ यू आर यूजिंग सम मीडिया तो देन मच बेटर, क्योंकि उसमें होता क्या है कि उसमें ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक बहुत सिंपल मैनर में आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द लीग मैचेस, लीग टूर्नामेंट। लीग पर हम लोग फोकस कर रहे हैं क्योंकि लीग इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द विनर, एग्जैक्ट विनर। और उसका क्या है, ईच एंड एवरी टीम गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है लीग टूर्नामेंट में। नॉकआउट में क्या होता है, ज्यादातर टीम्स को एक डिसएडवांटेज होता है, दैट बेसिकली वी कॉल इट डीमेरिट। तो वहां डीमेरिट होती है नॉकआउट टूर्नामेंट में, क्योंकि उसमें क्या होता है, दो अच्छी टीमें ज्यादातर आमने सामने पहले आ जाती हैं और उसमें से एक अच्छी टीम बाहर चली जाती है। तो इस चीज पर द बेस्ट मेथड टू ऑर्गेनाइज द इवेंट इज ऑलवेज अ लीग, लीग ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ जो अभी आज जो कवर करेंगे, वी आर कवरिंग अ लीग मेथड। तो जो हमारा जो बेसिकली टूर्नामेंट सिस्टम होता है, तो उसमें हम लोग नॉकआउट यूज करते हैं, लीग करते हैं, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट करते हैं। दीज आर द टाइप्स ऑफ द टूर्नामेंट। तो हियर वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑन द लीग टूर्नामेंट। तो हमारा लीग टूर्नामेंट में एक बिल्कुल रेडी, रेगुलर रेडी आपके लिए बिल्कुल पहले से तैयार है, कुछ भी नहीं करना। सपोज यू हैविंग ओनली 3 टीम, आपके पास 3 टीम, तो यहाँ पर ये आपको यू जस्ट गेट दिस थिंग, ये आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 टीम्स के लिए 1 अगेंस्ट 2, 3 अगेंस्ट 1 एंड 2 अगेंस्ट 3। तो ये इस तरीके से एक आप कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल है, तो वो जो 1 स्कूल है वो प्ले करेगा 2 स्कूल के साथ, जो 3rd स्कूल है वो प्ले करेगा 1st स्कूल के साथ, और जो 2nd स्कूल आया हुआ है वो प्ले करेगा 3rd के साथ। तो ये एक लीग पैटर्न है। तो अगर आपके पास 4 टीम्स हैं तो यू कैन यूज दिस। 5 टीम्स का अगर आपको लीग करना है, 6 टीम्स का करना है, 7 टीम्स का करना है, 8 टीम्स का करना है, 10 का, 12 का, तो दिस इज द मेथड। तो ये एक आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। एंड दिस बेसिकली ग्रुपिंग इज डन बाय द IHF। IHF के अकॉर्डिंग है, तो इट इज अंडर द रूल्स ऑल्सो, तो नोबडी डिनाइज, आप इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और ये इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें हर टीम एक दूसरे के साथ खेलना इज कंपल्सरी, प्लेइंग इज कंपल्सरी टू प्ले विद ईच अदर। अब मैक्सिमम क्या टाइम होता है कि नॉकआउट में क्या कर देते हैं, दो बहुत अच्छी अच्छी जो टीम्स होंगी उनको एक एक पूल में एक साथ कर देंगे। होता है कि नहीं होता है? अब उसमें जो अच्छी अच्छी टीम्स हैं वो एक साथ हो जाएंगी, और जो एक टीम है, तो इसमें ये क्या होता है, ये लीग में ये सारी चीजें नहीं हो पाती। So the wonderful method to organize the competition or the event is always a league. अच्छा, अब उसमें बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट द मैचेस। अगर मैच को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि यू हैविंग द 2 थिंग्स दैट यू कैन फोकस। यहाँ पर अगर आप देखिए तो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मैचेस, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, इफ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दिस, तो ये जो आपके सामने यहाँ पर है, दिस इज द फॉर्मूला to find out the total number of matches. So number of team into number of teams minus 1 upon 2 is the formula to find out the number of matches. How to calculate the matches? तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला आप इसे कर लीजिए, आप इजीली आपको पता चल जाएगा कि कितने मैचेस होने, हमें 15 टीम्स के लिए करना है, 20 टीम्स के लिए करना है। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है। तो फॉर एग्जांपल 5 टीम्स हैं हमारे पास, इफ वी हैविंग अ 5 टीम, ठीक। अभी अब यहाँ पर हो रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद द नंबर ऑफ टीम एंड देन माइनस। तो हमने जब इसको ये करेंगे तो वी जस्ट गेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस फॉर 5 टीम्स इज 10। तो हमें यहाँ पर 10 मैचेस वी आर जस्ट गेटिंग। तो सिंगल ये लीग जो, यस
सिंगल लीग का हो गया ना सर ये फॉर्मूला? हाँ, सिंगल लीग, सिंगल। तो ये बेसिकली ये हमारा आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड अब बहुत सारे मेरे पास कभी कभी कुछ बच्चे हमारे अभी फोन करते हैं, जब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक ये चीज हमेशा मिस कर देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो सबसे ज्यादा मिस होती है, ये आपको रेयरली बहुत कम मिलेगा कि कोई जो ऑर्गेनाइजिंग है कमिटीज होती हैं वो जनरली इसको फोकस करती हैं। दे नेवर मेक दिस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको यहाँ पर जो टेबल ऑफ रिजल्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे अभी। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है जब लीग टूर्नामेंट होते हैं तो मैक्सिमम स्कोर इक्वल हो जाता है टीम्स का। तो वो किस तरीके से किया जाता है, अब जैसे नेम ऑफ द टीम, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लेते टीम ए। अब ये वाला जो कॉलम है ये ब्लैंक रखा जाता है क्योंकि टीम ए से नहीं खेल सकती ना। तो ये टीम ए इज प्लेइंग अगेंस्ट द टीम 2। तो अब उसमें क्या हुआ, विनिंग हुआ, लूज हुआ या ड्रॉ हुआ, व्हाट इज द रिजल्ट, ये आपको रिजल्ट यू हैव टू मेंशन लाइक, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू आल्सो मेंशन द पॉइंट। उसके पॉइंट कितने हैं ये भी आपको मेंशन करना है वेल इन एडवांस। यू आर गिविंग 2 पॉइंट, यू आर गिविंग 3 पॉइंट, यू आर गिविंग 1 पॉइंट फॉर ड्रॉ और लूजिंग फॉर 0 पॉइंट। ये तो पहले से सारे पॉइंट सिस्टम रेडी होने चाहिए। एंड देन आफ्टरवर्ड जब आप इसको करेंगे तो दैट इज द टोटल स्कोर। आपका जो टोटल स्कोर क्या हुआ इस टीम के साथ ये यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन ये जो कॉलम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होने देता। जब लीग में क्या होता है मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। जब पॉइंट इक्वल हो जाएंगे तब ये प्रॉब्लम आती है कि अब कौन सी टीम को आप रैंक 1 देंगे, रैंक 2 देंगे, रैंक 3 देंगे। तो यहाँ पर आता है वी हैव टू सी दिस गोल डिफरेंस। तो गोल डिफरेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने टूर्नामेंट में वी मस्ट फोकस ऑन दिस कि आपका गोल डिफरेंस कितना है। तो ये भी इसमें हमें मेंशन करना चाहिए। तो ये सारा एक चार्ट है, ये भी हम आपको शेयर कर देंगे। आई विल जस्ट शेयर टू यू। तो ये चार्ट है, ये बहुत हेल्प करता है। ऑलवेज जस्ट कीप दिस चार्ट विद आफ्टर व्हेनेवर यू ऑर्गेनाइजिंग द कंपटीशन। तो मैक्सिमम टाइम जो प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है टीम के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम हो जाते हैं, पर गोल डिफरेंस इज नेवर रिमेन्स द सेम। ये कभी नहीं होती, ये हमेशा यहाँ पर वेरिएशन आता है। गोल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, गोल डिफरेंस गोल अगेंस्ट और गोल फॉर, जितना गोल हुआ है और जितना अगेंस्ट में हुआ है, जितना आपने किया है, गोल स्कोर एंड गोल अगेंस्ट माइनस करेंगे तो यू गेट द गोल डिफरेंस। आपने जैसे फॉर एग्जांपल टीम ए ने फॉर टोटल टूर्नामेंट में 100 गोल स्कोर किए और उसके अगेंस्ट में 80 गोल्स हुए, तो गोल डिफरेंस इज 20। तो आपको एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज अ गोल डिफरेंस। तो ये आप इस तरीके से ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे टीम ए का, टीम बी, टीम सी, टीम डी। तो देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड आउट द point and then afterward it's very easy to identify the rank, किस टीम को कौन सा रैंक मिल रहा है। फिर देन आफ्टरवर्ड यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स ओनली। अब लीग टूर्नामेंट में जो होता है वो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में तो लीग कम नॉकआउट हो जाता है, जैसे इंटर यूनिवर्सिटीज और नेशनल्स में तो लीग कम नॉकआउट होता है वहां पर जहां पर सिंपल लीग सिस्टम फॉलो किया जाता है, सिंपल लीग सिस्टम, तो वहां पर जब रैंक डिसाइड करेंगे फर्स्ट इसको गोल्ड मेडल मिल रहा है या दिस टीम विंस द ट्रॉफी। तो जैसे अगर आप देखें बार्सिलोना लीग होती है, तो जो स्पेनिश लीग होती है, जर्मन लीग, ये लोग ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी हैंडबॉल की, तो दे आर डूइंग दिस थिंग। तो वो ये नहीं करते, दे आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग द नॉकआउट सिस्टम। पर हमारे जैसे अगर नेशनल में देखेंगे तो फर्स्ट टूर्नामेंट बिगिन विद द लीग एंड देन इट टर्न टू द नॉकआउट सिस्टम। In the same manner, in the interzonal, the same system adopted. First, begin with this league, and then afterwards, it converts to the
knockout. And in the basically in the zonal system, what happens? Zonal system में ज्यादातर क्या होता है? Begin with the knockout and ends with the league. तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है. तो इसमें क्या होता है? You can easily identify the ranking system. So you always prepare this table. It is essential to prepare it. It is very essential. And then afterwards, how we just use our facilities, whatever we have. हमारे पास जो facilities है, हम कैसे improve कर सकते हैं? For conducting the tournament, अगर आप देखेंगे तो एक simple आपका 40 by 20 meters का जो हमारा standard court है, उसमें 3 mini courts is easily prepared. आप 3 कोर्ट्स को बना सकते हैं मिनी हैंडबॉल के लिए, मॉरल लेवल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने, लीग कराने के लिए जरूरत नहीं है कि बहुत बड़ा स्पेस चाहिए. अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि यू ऑलवेज डिमांड मोर स्पेस एंड स्कूल और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन नेवर वांट टू गिव द स्पेस, इजंट इट? सबके पास एक लिमिटेड स्पेस है. तो हाउ वी यूटिलाइज द स्पेस दैट वी हैव? हमारे पास जो स्पेस है हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो दिस इज द वंडरफुल एग्जांपल वन, हाउ वी जस्ट मेक अ 3 मिनी कोर्ट इन अ 1 स्टैंडर्ड कोर्ट. तो बेसिकली अगर हम देखते हैं तो वी रिक्वायर्ड अ लिमिटेड फैसिलिटीज टू ऑर्गेनाइज द इवेंट. अब होता है क्या है कि नहीं, वी नीड होल प्ले फील्ड, होल बड़ा ग्राउंड चाहिए, इतना बड़ा वो चाहिए, तब जाके हम ऑर्गेनाइज करेंगे. तो इसमें क्या होता है, वेन एवर यू जस्ट फोकसिंग ऑन द मोर थिंग, द मोर रिसोर्सेज इज रिक्वायर्ड, मोर रेफरीज इज रिक्वायर्ड, more manpower is required, more human resources required, and most of the important, more fund is required. And very importantly, it is very tedious to organizers to control the things, because one handball court is here, one is there, one is out of the area, and the organizer always just try to focusing control all the ground. So this is one of the wonderful example how you make 3 courts in a single standard handball court. So now afterwards, this is the second example. We can create different dimensions of ground in a single standard court, 2 handball courts, and then a different type of rectangular play field also we can. क्यों नहीं कर सकते? We can use a half court also. हम एक अपना उसी में एक बीच हैंडबॉल का जो हमारा मार्किंग है दैट कैन बी यूज. हम रेक्टेंगुलर गोल एरिया क्यों नहीं बना सकते? मैंने कल हम जब बात कर रहे थे तो हम जब बीच हैंडबॉल के बारे में, तो वी कैन ऑल्सो क्रिएट दिस रेक्टेंगुलर गोल एरिया. अल्टीमेटली देखिए, जो फिलॉसफी समझिए, मेन है वी हैव टू ऑर्गेनाइज द इवेंट. हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना है इन अ सक्सेसफुल मैनर फॉर आवर चिल्ड्रन, so they can enjoy the competition, not the your officiating and rule. They want to come to participate in the competition, they want to play in the competition, they are eagerly waiting to participate in the competition. They come early in the morning with their tiffin boxes, with the water bottle, and they are waiting to participate in the match. But what happened? We are focusing on the different things. They are waiting till 2 hours, 3 hours, 4 hours. Why they are waiting 2-3 hours? Who is responsible for this? Why don't they are just, whenever they just reach to the arena, they start playing the match? अब मैक्सिमम टाइम यही होता है. आप ऑर्गेनाइज करके देखिए इंटर स्कूल्स में, इसमें जब भी कंपटीशन होगा, स्कूल्स आएंगे 2 से 3 घंटे 4 घंटे बैठे रहेंगे और फिर वो उनका मैच मिलेगा उनको. क्यों होता है? उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो हमारे यूटिलिटीज है, जो प्रॉपर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है, वो बहुत ठीक से नहीं होता. और फिर वहां से बच्चे क्या होता है, पहले ही थक जाते हैं. और जब बच्चे पहले थक जाएंगे तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, ये खेलेंगे नहीं, अच्छे से नहीं खेलेंगे बस. पर उनका मेन क्या है कि आपका जो एम है
वो पार्टिसिपेशन का वो खराब हो जाता है। वी मस्ट फोकस ऑन दिस थिंग कि हम कैसे जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम एग्जैक्ट विद इन टाइम, विद गिवन टाइम वी कैन कंडक्ट द टूर्नामेंट। हम क्यों नहीं विद इन जो स्कूल आवर्स है उसी में फिनिश कर देते हैं एक वन डे इवेंट, जो जिसमें कि बच्चों को ये भी दिक्कत ना हो कि वो क्या है। तो उसमें होता क्या है कि उनकी स्कूल बसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, तो स्कूल बसेस को आपको वापस लेके जाना पड़ता है, बच्चों को वापस उनके घर पे छोड़ना पड़ता है। तो आपको विद इन द स्कूल टाइमिंग में अगर आप उसको खत्म करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चे जो हैं बेसिकली दे एंजॉय मोर, दे हैविंग फन, एक फन जैसा हो जाएगा उनके लिए, नॉट वहां पर अब क्या होगा कि वो एक पनिशमेंट हो जाए। अब दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजर, वेदर यू वांट टू मेक अ फन और वेदर यू वांट टू मेक अ पनिशमेंट फॉर द स्टूडेंट। आपको इस पनिशमेंट की तरह उसको कंपटीशन को बनाना है या वो करना है। अब ये पहले से एडवांस में डिसाइड नहीं होता। अब कंपटीशन होना है, you are waiting for the competition, you are waiting, your team is waiting for 2 hours, now you just see what is the condition of the player। अब वहां पर होगा क्या, प्लेयर्स का क्या परफॉर्मेंस होगा, प्लेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे होंगे, किस लेवल पे परफॉर्म करेंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात लग रही है पर ये बहुत इम्पैक्ट डालती है उसके इंटरेस्ट पर, और नेक्स्ट डे वो नहीं आएगा। जो मैक्सिमम बच्चे वो अवॉइड करेंगे कि अरे वहां पर बाहर बैठना पड़ता है, वहां पर धूप रहती है, वहां पर ये रहता है, वहां पानी नहीं मिलता, वहां एक रिफ्रेशमेंट नहीं मिलता है। कभी ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि हम रिफ्रेशमेंट पॉइंट नहीं बना सकते, कांट वी मेक अ रिफ्रेशमेंट पॉइंट, कांट वी मेक वाटर पॉइंट। वाटर पॉइंट कितने जगह पर होते हैं, नहीं होते, तो जाते हैं बच्चे बार बार शॉप की दुकान पर लेके चले जाते हैं। यू कैन अरेंज स्टॉल्स ऑल्सो, ऑर्गेनाइजर कैन अरेंज स्टॉल्स ऑल्सो। तो ये चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। ये बड़ी छोटी सी हैं, लगता है अरे बच्चे तो खेलने आए हैं, बच्चे खेलने आए, दिस इज द ड्यूटी ऑफ यू, वो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी पर खेलने आए हैं। दिस इज द ड्यूटी दैट यू हैव टू गिव अ गुड थिंग्स टू द स्टूडेंट, appropriate facilities, appropriate, not too much, not lavish, appropriate facilities to the student। आपके जो स्टूडेंट है उनको कुछ तो फैसिलिटीज मिलना चाहिए रिलेटेड टू बेसिकली एकोमोडेशन आता है, टॉयलेट्स हैं, वॉशरूम्स हैं, वो कैसे हैं, हमारे वाटर बॉडी है, वाटर पॉइंट्स हैं कि रेडी हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए क्या है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें, तब आप देखेंगे कि आपका ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ये सारी चीजें, हमारा फोकस सिर्फ मैच पे रहता है या ट्रॉफी पे रहता है, वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग, but we are not focusing on the facilities side also, that we must provide a minimum facilities only। किसने बोला है कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज देने की जरूरत है, लैविश नहीं देना, हमें बहुत वो नहीं देना है कि 5 स्टार फैसिलिटीज वी आर गिविंग, जस्ट रिक्वायर्ड फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट। एक शेड हमने वहां प्रिपेयर कर दिया, शेड के लिए जहां बच्चे हुए, वी आर जस्ट कीप सम चेयर्स आल्सो, वहां शेड रखा हुआ है, उनको पता है एक पर्टिकुलर प्लेसमेंट रखा हुआ है। जो होम टीम है, अगेंस्ट टीम है, टीम ए का एक अलग है, टीम बी का चेंजिंग रूम अलग है। तो वी कैन जस्ट यूज दीज थिंग्स। हम लोग ये सारी चीजें जो मिनिमम फैसिलिटीज हैं उससे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टुडेज सेशन, दैट इज बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट and organizing the handball competition, and special acknowledgement to IHF International Handball Federation. Thank you.